Hello student, this is Vinita Singh from St. Xavier School Nalia, and today we will discuss class 9 Moments books chapter number 2, The Adventure of Toto, written by Ruskin Bond. Okay, so the adventure of Toto. Who is Toto and what the adventures were played by the Toto? All these things we will study in this chapter. We will read in this chapter. So this is a very interesting and we can say this is a very humorous and adventurous story of a naughty monkey named Toto. So who is Toto? Toto is a naughty monkey. Okay, and the writer's grandfather, means the Ruskin Bond's grandfather, brought the monkey from a tanga driver, and the pranks which were played by the Toto have been narrated in this story in a very interesting way that you can't stop yourself to read it. Okay, so without any delay, let's start it. We will start our chapter from the starting lines. Those grandfather bought Toto from a tanga driver for the sum of 5 rupees. The tanga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Okay, so here feeding trough means होता है एक large container जिसमें animals को feed किया जाता है. ठीक है, and tanga, you know that horse coat जो होता है, काट जो होता है, जो घोड़ा गाड़ी होती है, उसको बोलते हैं टांगा. ठीक है, तो टांगा जो है उसमें उसने देखा कि टांगा ड्राइवर के पास क्या है, एक रेड फेस्ड मंकी है, और उसको उसने किससे बांध रखा है, एक बड़े से लार्ज कंटेनर से जिसमें उनको खाना दिया जाता है. ठीक है, जिसमें जानवरों को खाना दिया जाता है, ऐसा एक बड़ा सा कंटेनर है जिसमें उसको बांधा हुआ है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो एक जगह रुक नहीं सकता है ताकि वो इधर उधर ना भाग सके. ठीक है, मंकी. और जैसे ही ग्रैंडफादर ने उसको देखा तो उनका मतलब एक विश हो गया, उनका एक डिजायर आ गया कि दैट ही शुड ऐड हिम टू द कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, और he should add him to his private zoo which was placed at his own home. Okay, जो खुद उनके घर पे है, उस जू में उनको ऐड करने की उनके डिजायर हो गया, एक तरह से उनकी इच्छा हो गई कि हाँ ये मेरे जू में भी होना चाहिए. ओके, Toto was pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were purely white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hand looked dried up as though they have been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, which adding to his good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. Okay, एंग्लो इंडियन मीन्स होता है जो कि ब्रिटेन और इंडिया दोनों से रिलेटेड जो पर्सन होते हैं उनको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन. ओके, एंड यहाँ पे पिकल्ड इन द सन, पिकल्ड मीन्स होता है जैसे कि आप किसी भी फूड को जैसे प्रिजर्व करने के लिए, जैसे विनेगर वगैरह में हम लोग प्रिजर्व रखते हैं ना, किसी भी आइटम्स को यूज करने के लिए रखते हैं, तो इसके हैंड्स जो थे वो इस तरीके से थे जैसे कि आपने उसको क्या किया, जैसे प्रिजर्व करने के लिए विनेगर में रखे जाते हैं तो जैसे ड्राइड अप हो जाते हैं ना, वैसे लग रहे थे. एंड हियर वन वर्ड इज ऑल्सो यूज्ड, स्कूपिंग अप. स्कूपिंग अप का मतलब होता है उसको लिफ्ट करने के लिए. ठीक है, सो इन दिस पैराग्राफ द प्रिटी मंकी के बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके का दिखता है, उसकी कैसी आईज है, और उसके पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है वो किस तरीके से दिखता है एंड ऑल. सो द राइटर गिव्स अ डिस्क्रिप्शन अबाउट टोटो इन दिस पैराग्राफ, एंड ही हैड ब्राइट शाइनी आईज विच वर फुल ऑफ मिस्चिफ. मिस्चिफ मीन्स होता है शैतानी से भरा हुआ. ठीक है, the eyebrows were deeply set on his face, his teeth were like pearls, and many ladies which were belongs to the Anglo-Indian community got scared when they saw his teeth, which were displayed when he smiled. Okay, and Toto's hands were also very dried and wrinkled as if they had been dried in the sun like pickled vegetables. Okay, and he had a long tail, and the writer's grandfather thought that the tail added to the good looks of any animals. So the Toto tail was like a third hand for him. It helped him from the hang from the branches of a tree, and he also used it to lift the object or which were beyond his hand reach. Okay, जो उसके हाथ
के उसमें नहीं पहुंचते तो वो क्या करता है, किसी भी चीज को लिफ्ट करने के लिए अपने टेल का यूज कर लेता है, हैंग करने के लिए अपने टेल का यूज कर लेता है। उसके आंखें इतनी चमकदार थी, बहुत ज्यादा शैतानी भरी है जिसको बोल सकते हैं। उसके दांत पेल्स जैसे चमक रहे थे, किसी भी एंग्लो इंडियन देख के इंडियन लेडी को अगर देखा जाए तो वो डर जाए, ऐसा कुछ ऐसा सीन उसका दिखाई दे रहा था। ठीक है, so let's continue this chapter. Grandmother always fused when grandfather brought home some new birds or animals. So it was decided that Toto present should be kept a secret from her until she was in a particular good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. Peg का मीन्स होता है हुक बनाना, ठीक है, वॉल के अंदर हुक बनाना. So here the writer's grandmother was against the grandfather's attitude of bringing new pets. Okay, जैसे भी वो birds animals लाते थे तो उनको ये attitude उनका पसंद नहीं था. तो grandfather ने सोचा कि हम लोग टोटो की प्रेजेंस जो है वो तब तक ग्रैंडमदर से छुपाएंगे जब तक कि वो किसी गुड मूड में ना हो. ओके, एंड एट दैट टाइम उसको हमें डिस्क्लोज करेंगे जब वो ग्रैंडमदर क्या हो, किसी अच्छे मूड में होंगी. सो द राइटर एंड ग्रैंडफादर ने दोनों ने सिक्योर किया टोटो को एक कबर्ड के अंदर, ठीक है, जो राइटर के रूम में थी, और उसको वो वहां से भाग ना सके इसलिए उन्होंने क्या किया, वॉल के ऊपर एक हुक लगा दिया और उससे उसको टाइड कर दिया. ठीक है. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as a naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which have been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. अभी भी ऑर्नामेंटल मीन्स होता है कि जो डेकोरेटिव आइटम्स वहां पे होते हैं, ठीक है. नेकेड वॉल मीन्स यहाँ पे नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर मीन्स हुआ है कि वहां पे जो एक ब्रिक्स और प्लास्टर से जो कवर कर दिए जाते हैं, तो अगर वो नेकेड मीन्स हो गया कि उसको अनकवर्ड कर दिया है, ठीक है, वहां से प्लास्टर और ब्रिक जो है वो बाहर निकल गई है. रेंच्ड का मतलब होता है तोड़ना, सॉकेट का मतलब होता है अटैचमेंट, श्रेड्स का मतलब होता है जिसको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी स्लाइस में कट कर दिया जाए. ओके, so here writer and his grandfather went to the Toto after a few hours, and the sight was shocking. Was what? The Toto has torn the decorative wallpapers. Okay, and he also broken the hook and has escaped from his binding, and also he tore the writer blazer into the thin pieces. Okay, जो स्कूल का ब्लेजर था उसको भी उसने फाड़ दिया था कुछ पीसेस के अंदर, और वॉलपेपर डेकोरेटिव वॉलपेपर्स हटा दिए थे वहां से. जो हुक जिससे उसको बांध रखा था, पेग जो था वो, उससे उसने निकाल दिया था, जिससे दीवार के भी कुछ प्लास्टर वगैरह जो थे वो भी उतर चुके थे. ठीक है, और इस टाइम पे राइटर जो था वो बहुत ज्यादा डर गया था. उसे लगा कि अब ग्रैंडमदर उसे क्या बोलेगी, बट ग्रैंडफादर को टोटो की ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही थी, उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था. ठीक है. He is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. अब grandfather जो है वो बहुत ज्यादा delighted है, बहुत ज्यादा खुश है टोटो के एडवेंचर से, उनको बहुत अच्छा लग रहा है टोटो ने क्या किया है उसमें. And he also felt that Toto was very clever. He said that if they would have given him more time, he would make tied the thin pieces of the writer torn blazer into a rope and would have escaped out of the window also. Okay, जो उसने अभी फाड़ के उसके स्लाइसेस बनाए हैं, छोटे छोटे जो कपड़ों के स्लाइसेस बनाए हैं, थोड़ी देर में क्या करेगा, ये इसका रोप भी बना देगा, ठीक है, कोट का. तो यही चीज वहां पे, और उसके बाद में ये कोट रोप बना के और विंडो से नीचे भी चला जाएगा. मतलब उसका कहने का मतलब है कि वो इतना ज्यादा एडवेंचरस है, और ये एडवेंचर उसका जो है, उसका जो मिस्चीवियस एडवेंचरस बिहेवियर जो है वो ग्रैंडफादर को बहुत अच्छा लग रहा है. His presence in the house still a secret. Toto was now transformed to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companion to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. ठीक है, सोशलेबली का मतलब होता है फ्रेंडली मैनर्स में रहना. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है
कि टोटो को शिफ्ट कर दिया गया है सर्वेंट क्वार्टर में और उसको एक केज के अंदर रख दिया गया है, ठीक है, पिंजरे में। एंड ही वुड लिव विद द अदर पेट्स ऑफ ग्रैंडफादर्स जू, जो ग्रैंडफादर जू के अंदर और भी थे। द जू कंप्राइजेस ऑफ ए tortoise, pair of rabbits, a squirrel, and the writer's pet goat. Okay, and Toto was very mischievous, बहुत शैतान है वो तो। he didn't let any of the animals sleep at night. So राइटर के जो ग्रैंडफादर है उन्होंने, जो कि कल अगले दिन सहारनपुर जाने वाले थे नेक्स्ट डे अपने पेंशन के कुछ काम के सिलसिले में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो टोटो को अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो अनमैनेजेबल है, वहां पे वो मैनेज नहीं कर पाएगा, यहाँ पे मतलब सारे पेट्स के साथ में वो रह नहीं पाएगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको साथ में ले जाने के सोचा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर on that trip, but he told me about it afterwards. मैं उनके साथ तो नहीं जा पाया, बट उन्होंने मुझे उस ट्रिप के बारे में सब कुछ बताया। A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor and occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. Okay. अबाउट का मतलब होता है हो, ठीक है। सो हियर द राइटर वाज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही कांट accompany his grandfather and Toto on this trip, but his grandfather narrated the happening of the trip on him later. Okay, he had just got a special bag for Toto, and it was um, it was made of a strong material like canvas, and he played some um, and he also play उसके अंदर उसने क्या किया, उसके अंदर थोड़े ड्राई ग्रासेस डाल दिए बॉटम में, ठीक है। उस ट्रिप में जो उसका बैग था, जो कैनवस का बैग प्रिपेयर किया गया था, उसके अंदर, उस बैग के अंदर टोटो जो था वो घर उसमें क्या हुआ, उसमें जिपर लगा दिया गया था टॉप के अंदर। राइटर्स के जो ग्रैंडफादर है उन्होंने एश्योर किया था कि बैग को अच्छे से क्लोज कर लिया जाए, जिसकी वजह से वो निकल के टोटो बाहर ना जा पाए। अगर वो कुछ भी कोशिश करता भी है तो वो क्या करेगा, मतलब इधर से उधर फ्लोर पे रोल हो सकता है, या फिर ओकेशनली वो जंप कर सकता है, बस इतना ही हो सकता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly put his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Okay, turnstile का मतलब होता है जो मैकेनिकल गेट होता है ना, जिसमें रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल लगे रहते हैं, जिसमें एक बार में सिर्फ एक ही बंदा क्रॉस कर सकता है, ठीक है। काफी पार्क वगैरह में भी लगे रहता है, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन में आपने देखा होगा कि आप जब किसी से क्रॉस कर रहे हो साइड से, तो क्या होता है कि वहां पे बैरियर टाइप लगा दिए जाते हैं, मैकेनिकल बैरियर्स, ठीक है। तो उस टाइम में एक टाइम में सिर्फ एक ही बंदा पास हो सकता है, टर्नस्टाइल बोलते हैं उनको, ठीक है। सो द टोटो रिमेन सिक्योर्ड इन ग्रैंडफादर्स बैग स्टिल सहारनपुर, सहारनपुर तक वो सिक्योर्ड था। बट सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने क्या किया, टिकट निकालने के लिए टर्न स्टाइल से जैसे जा रहे थे, एट दैट टाइम टोटो पिक्ड आउट ऑफ हिज बैग एंड स्माइल्ड एट द टिकट कलेक्टर। उस टाइम पे उसने क्या किया, मतलब टोटो बाहर की तरफ उसने अपना गर्दन निकाल के और स्माइल कर दिया, किसकी तरफ, टिकट कलेक्टर की तरफ, ठीक है। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर annoyance, he said, sir, you have a dog with you will have to pay for it accordingly. अब annoying का मतलब होता है कि किसी को एंगर से बोलना कुछ भी, ठीक है। तो अब वो जो बेचारा उस टाइम पे डर गया, पीछे की तरफ हो गया, लेकिन उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया और ग्रैंडफादर को बोला गुस्से में कि सर आपके पास डॉग है, आपको इसके लिए अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा कि आप अपने पेट को साथ में लेके जा रहे हो, ठीक है। सो then what happened? In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and the 3 rupees was a sum of handed over as its fare. Okay, vain का मतलब होता है unsuccessful attempt किसी को बोलते हैं, ठीक है। And quadruped का मतलब होता है एक ऐसा एनिमल जिसके 4 फीट हो,
ठीक है, फेयर मीन्स टिकट के जो प्राइस है उसको। सो ग्रैंडफादर जो थे वो अनसक्सेसफुल रहे ये एक्सप्लेन करने में टिकट कलेक्टर को कि ये मंकी है, डॉग नहीं है। इंस्टेंट ऑफ दैट टोटो जो है वो एक एनिमल है जिसके 4 पांव है। बट द टिकट कलेक्टर वाज फर्म दैट टोटो फेल इन दिस कैटेगरी ऑफ डॉग एंड ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 rupees for Toto's ticket. Okay, then grandfather, just to get his own back, took from his pocket out our pet tortoise and said, what must I pay for this since you have charges for all animals? To get on back का मतलब होता है कि रिवेंज में बोलना या फिर ताना देना, कुछ ऐसा करके। तो ग्रैंडफादर से जब उस तरीके से पैसे लिए गए 4 पांव बता के कि 4 पांव है तो ये डॉग है, तो उन्होंने अपनी पॉकेट से एक छोटे टॉर्टोइस को निकाला और बोला आप इसके क्या चार्ज करेंगे, क्योंकि आप तो सभी एनिमल्स के चार्जेस ले रहे हैं। The ticket collector looked closely at the tortoise, provided it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog. Okay, prodded का मतलब होता है पुश करना, ठीक है। तो टिकट कलेक्टर ने क्या किया, उसके क्लोजली उसको देखा और अपने 4 फिंगर से उसको थोड़ा सा पुश करके और ग्रैंडफादर को प्लीज स्माइल में बोला कि इसके कोई चार्ज नहीं है, ये डॉग नहीं है, ठीक है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey named Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. Okay, stable का मतलब होता है एक ऐसा मतलब बिल्डिंग जहाँ पे हॉर्सेस वगैरह को रखा जाता है, ठीक है। हॉर्सेस वगैरह को होम बोल सकते हो आप। हाइटर का मतलब होता है कोई भी स्ट्रैप या लूप जहां से क्या होता है हॉर्स अपने हेड को बाहर की तरफ निकालते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी। तो उसको कहाँ रखा गया, उसके जो टोटो था, जब उसके प्रेजेंस ग्रैंड मदर को पता चली और उन्होंने जब फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको कहाँ जगह मिली, टोटो को स्टेबल में मिली, जहाँ पे उसका कंपेनियन कौन था, एक डोंकी था जिसका नाम था नाना। ओके, और जब उसकी पहली रात थी, जब स्टेबल के अंदर पहली रात थी, तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि देखते हैं कि टोटो क्या कर रहा है। ऐसा सोच के उसको कंफर्टेबल है या नहीं है ये देखने के लिए वो रात को वहां गए और उन्होंने देखा कि नाना जो है वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस है। वो अपनी रोप को खींच रहा है कि वहां से निकलने के लिए और मतलब बाहर की तरफ, और ये सारी चीजें वो देख रहा है कि नाना अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, नाना को एक स्लैप दिया। ग्रैंडफादर gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. Okay, haunches का मतलब होता है पीछे की तरफ। तो ग्रैंडफादर ने नाना को हिट किया उनके बैक पे इन ऑर्डर टू स्टॉप इट। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज मार दिया और ये वो करके, उसको चुप कराने के लिए उसको थोड़ा सा हाथ ऐसे बीट करते हैं वैसे किया। Then नाना जो था वो jumped back with a jerk and Toto was dragged along with her. Toto भी उसी के साथ में क्या हुआ, पीछे पीछे जर्क हो गया, उसको भी धक्का लगा। A great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of warm water given by the grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, until he was into the water up to his neck. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. Okay, विंटर सीजन में टोटो के लिए अगर कुछ इंजॉयबल चीज होती है वो होता है वार्म बाथ। ओके, उसको गरम गरम पानी से नहाना पसंद था उस टाइम पे। ही वुड प्रिटेंड टू बी अ वेरी सेल्फिश एंड बिफोर स्टार्टिंग हिज bath he just checked the temperature of the water. He would copy the writer. Okay, stepped out into the tub 1 foot, step out into the tub 1 foot at a time. Okay, and finally when he was
confirmed, then he will jumped on that bathtub, okay, and then he would rub himself with a soap, and the water became cold, he could run out. और जब वो पानी ठंडा हो जाता है तो वो बाहर निकल जाता है और स्टोव के पास जाके किचन के पास अपने आप को सुखा लेता है. टोटो गेट annoyed if he was laughed upon, okay. अगर उसके पास उस पे कोई हंस देता है तो उसको बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे, और उसको बहुत ज्यादा हर्टेड फील होता है, और उसके बाद वो नहाने से भी मना कर देता है, ठीक है. राइटर ने ये सारे इंसिडेंट्स को रिकलेक्ट किया. जब एक बार क्या हुआ था, जब टोटो ने ऑलमोस्ट अपने आप को क्या कर लिया था, गर्म चूल्हे पे ही मतलब अपने आप को ही बॉईल कर लिया था, ज्यादातर मतलब बॉईल कर लिया था, ठीक है. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. Hauled का मतलब होता है बाहर निकालना, ओके. एक लार्ज केटल था जिसके अंदर वाटर बॉईल हो रहा था स्टोव के अंदर. टोटो ने क्या किया, उसके अंदर क्लाइम कर दिया, ठीक है. उसको लगा सीधा गरम गरम पानी से नहाते हैं एंड ऑल करके, तो वो सीधा उसके अंदर चला गया, ठीक है. लिड को रिमूव करके उसने देखा कि वाटर बहुत वार्म ही है, नहाने लायक है, चलो इसमें बैठ जाते हैं. बैठ गया वो उसके अंदर. केटल में जैसे ही एंटर हुआ, ठीक है, तो वाटर जो था वो स्टोव पे चढ़ा हुआ था. स्टार्टेड बॉयल, जैसे स्टार्ट हुआ तो उसको जैसे ही लगा थोड़ा सा हॉट लगा, तो वो थोड़ा सा ऊपर हुआ. ऊपर देखा तो ऊपर वाला पानी थोड़ा गर्म था, क्योंकि जब गर्म करते थे नीचे का पानी गर्म हो जाता है जल्दी, ऊपर का बाद में होता है, ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली. तो फिर नीचे बैठ रहा है, फिर ऊपर नीचे इस तरीके से वो कर रहा था. और फाइनली जब तक कि उसको ग्रैंड मदर पहुंच के उसको हाफ बॉइल्ड मंकी को केटल से बाहर नहीं निकाला, तब तक वो वही काम करता रहा, ठीक है. इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. Okay, मतलब अगर ब्रेन अगर दिया जाए, ठीक है, अगर किसी को शैतानी के हिसाब से ब्रेन दिया जाए, ठीक है, तो if there is a part of our brain that governs our ability to create mischief, हमें शैतान क्रिएट करने के लिए अगर हमारे ब्रेन में एक पार्ट बना दिया जाए, then that part in Toto brain was highly developed, okay, and he had great capability to do mischiefs. शैतानी करने के उसके पास इतने ज्यादा कैपेबिलिटीज है, वो कुछ भी करता है, ठीक है. He was always doing in the mischiefs, always busy in doing mischiefs, and whenever he is the writer's auntie came one day, then he just trying to tear his dress and started to make holes in it, okay. One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunt rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arm. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determining on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. Okay, spite का मतलब होता है डिजायर होना किसी को, मतलब आप चाहते हो किसी को हर्ट करना, ठीक है. चैटर्ड का मतलब होता है एक साउंड आना जो कि मंकी क्रिएट करता है ना, चट 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 करके, जो चीची करके जो आवाज आती है उनकी, ठीक है. तो एक राइटर ने रिकलेक्ट किया एक अनदर इंसिडेंट अबाउट द टोटो, एंड उसकी जो शैतानी है, लॉट्स ऑफ शैतानी, लॉट्स ऑफ मिस्chievous बिहेवियर के टाइम. तो वो बोलते हैं कि एट लंच टाइम अ डिश ऑफ राइस वाज प्लेस्ड ऑन द डाइनिंग टेबल एंड द फैमिली रीच्ड टू ईट. उस टाइम पे उन्होंने देखा कि टोटो वहां पे ऑलरेडी खाना खा रहा है, मतलब राइस खा रहा है. राइटर्स की ग्रैंड मदर जो है उसने स्क्रीम किया, उसको डांटने की कोशिश की, तो उस रेस्पॉन्स में उसने क्या किया, एक प्लेट को ग्रैंड मदर की तरफ फेंक दिया, ठीक है. When the aunt tries to catch the turtle, he throw a glass of water in their face. ठीक है, उसके फेस पे पानी डाल दिया उसने. अब जब ग्रैंडफादर पहुंचे तो टोटो जो था वो अपनी जगह छोड़ के विंडो से बाहर चला गया था along with dish of the rice. Okay.
टोटो ने पूरा जैक फ्रूट का जो पेड़ था उसके ऊपर बैठ के, ब्रांच के ऊपर बैठ के पूरा एक एक ग्रेन को फिनिश किया, और फिनिश करने के बाद में ग्रैंड मदर जो कि उस पर चिल्लाई थी, तो उनका उसने क्या किया, गुस्से में वो प्लेट लेके ग्रैंड मदर की तरफ फेंका, और आफ्टर ईटिंग द राइस, सारे राइस खत्म होने के बाद उसने वो थ्रो किया वो डिश को, और उसको बहुत सारे पीसेस में क्या कर दिया, तोड़ दिया. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpapers. So grandfather found the tanga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. Okay. फाइनली ग्रैंडफादर को रियलाइज हो ही गया कि टोटो जो है वो एक पेट की तरह, मतलब घर पे रखना उसको सही नहीं है, वो सुटेबल नहीं है उस चीज के लिए. They could not afford the frequent losses of the things like clothes, curtains, and wallpapers and broken dishes. So the grandfather sold Toto back to the tanga driver in the sum of 3 rupees. उन्होंने खरीदा कितने रुपए में था, 5 rupees में, और उसे बेच कितने में दिया, 3 rupees में दोबारा से टांगा ड्राइवर को के. So that's all in your this story. I hope you enjoyed. If you have any doubt, then ask me in my comment box. Thank you so much.